So the set is sports meet contention. So the question is, five countries, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, are in contention to conduct a sports meet. The eventual winner is determined through several rounds of voting by member countries in the federation, with each member representing a different country. So there are a lot many countries in this federation, out of which five are contesting to host a sports meet, and the five countries are Brazil, Russia, India, China, and South Africa. Now, all the five countries in the contingent are also the members of the federation. Understood? In any round of voting, the country that gets the lowest number of votes gets eliminated. The survivor of the last round gets to host the event. A member is allowed to vote for at most two different countries in all the rounds combined. Hence, a member becomes ineligible to vote if both the countries he voted for in earlier round are out of contention in that round. For example, now suppose I'm a member, I'm voting for China. So I'm voting for China in first round, right? Now see, in the first round, China got eliminated. China secured minimum votes. China got eliminated. So still I can vote for some other country. So every individual has two options. Now suppose in the second round I voted for, let's say, Russia. And if Russia gets out, अब मैं third country select नहीं कर सकता. Now I cannot select the third country. So maximum I can vote for two countries, two different countries, right? And that too in two different rounds, not in a single round. Now, a member is also ineligible to vote in round if the country he she represents is in contention in that round of voting, and any member who is eligible must vote and vote for one country in any round. So, like suppose I am contestant from India, right? And India is in contention right now, so I cannot vote for any country. मैं किसी के लिए वोट नहीं कर सकता because I am representing India. मेरे लिए लोग वोट कर रहे हैं. I cannot vote for anyone else, right? Once if I'm out of contention, then I can vote for some other country. Okay, and then the following incomplete table shows the information of countries that receive the maximum and minimum votes in different round and the total number of votes cast in that round. So as per this table, so number of total votes in round one is not known to us. But then in round one, Brazil scored maximum votes, that was 34, and China minimum votes, that is 40. And definitely China gets out from round one. Out हो जाता है China round one. से समझ में आ रहा है हमें. So it is also known that all those who voted for Brazil, India, and Russia in any round continued to vote for the same country as long as the three countries were in contention. 20% of those who voted for South Africa in round one voted for India in round two. And those who voted for China in round one voted either for India or South Africa in round two. And all the members who became eligible to vote because his country got eliminated voted for India. So as in China से there are 14 members ना who voted for China. जैसे ही चाइना आउट होता है तो चाइना का जो रिप्रेजेंटेटिव है नाउ इज फ्री टू वोट, नाउ इज एलिजिबल टू वोट, सो ही वोटेड फॉर इंडिया. जो भी एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए दे वोटेड फॉर इंडिया. सो इस तरह से सेट गिवन है. बहुत अच्छा सेट लग रहा है सॉल्व करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बार पूरा समझ लिया होगा. मैं एक बार इसके क्वेश्चंस शो कर देता हूं आपको. तो ये इसके क्वेश्चंस रहेंगे. जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट, एक बार ट्राई करें आप इस सेट को सॉल्व करने का कि किस तरह से कर सकते हैं. पूछा क्या जाएगा डेफिनेटली कि राउंड वन में किसको कितने वोट्स मिले होंगे या फिर टोटल वोट्स कितने रहे होंगे. इस तरह के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं. तो देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है. सो मैंने एक और टेबल बना ली है कि राउंड वन में किसको कितने वोट्स मिले होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम इसको समझते हुए चलते हैं. सो फ्रॉम राउंड वन चाइना गॉट एलिमिनेटेड. चाइना गॉट एलिमिनेटेड. सो जो टोटल वोट्स थे इन राउंड टू दैट शुड इंक्रीज बाय वन. ऐसा क्यों? राउंड टू में एक वोट ज्यादा क्यों हो जाना चाहिए? बिकॉज जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो खुद वोट नहीं दे पा रहे थे, अब वो भी वोट दे पाएंगे बिकॉज चाइना इज आउट ऑफ कंटेंशन नाउ. तो चाइना नहीं है इलेक्शन में, अब पार्ट नहीं रहा, तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है ही इज नाउ एलिजिबल टू वोट फॉर सम अदर कंट्री. सो द वोट्स इन राउंड टू मस्ट बी वन मोर देन दैट इन राउंड वन. So from here we can say that the total number of votes in round one must be 111. यहाँ से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स राउंड वन में 111 रहे होंगे. आई होप आपको क्लियर होगा ये. क्यों? दोबारा एक बार समझा देता हूँ. क्योंकि 111 वोटर्स थे और टोटल वोटर्स कितने रहे होंगे? 111 प्लस 5 मेंबर्स और रहे होंगे. बट दीज 5 मेंबर्स बिलोंग टू 5 डिफरेंट कंट्रीज. सो बेसिकली दे आर नॉट वोटिंग इन राउंड वन. ये वोट नहीं कर रहे क्योंकि इनकी कंट्रीज जो है दे आर इन कंटेंशन, तो दे आर नॉट वोटिंग इन राउंड वन. सो टोटल वी कैन से दैट 116
countries were there in the federation. ये हम कह सकते हैं 116 countries were there in the federation. मैं यहाँ लिख देता हूँ 116 countries, out of which 5 countries are there who are contesting in round 1, out of which Brazil secured highest vote, that is 34. India is not known. Russia, China is 14, which is the lowest. So definitely China round 2 में बाहर हो चुका है, तो राउंड 3 राउंड 4 में एलिजिबल ही नहीं. ठीक है, यहां से हमें ये पता चल गया कि राउंड 1 में जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है दैट शुड बी 111. ठीक है, आगे देखते हैं इससे हम क्या कह सकते हैं. सो अभी जो चाइना के 14 वोटर्स हैं उनके वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए होंगे. अच्छा, इंडिया को कौन कौन से वोट्स मिल रहे हैं? जो साउथ अफ्रीका के 17 है, विच इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स. साउथ अफ्रीका के 17 कैसे हुए, इस पे एक बार फोकस करते हैं. आप देखेंगे यहां से बच्चों 112 से यहाँ पे 108 वोट्स रह गए. राउंड 2 में जो नंबर ऑफ वोटर्स थे वो 112 थे. यहाँ पे वोटर्स कम हो गए. और कितने वोटर्स कम हो गए? इफ योर आंसर इज 4 देन यू आर रॉन्ग. 4 वोटर्स कम नहीं हुए हैं, 5 वोटर्स कम हुए हैं. 5 कैसे, समझिए. राउंड 2 में कौन एलिमिनेट हुआ है? साउथ अफ्रीका इज द कंट्री विच गॉट एलिमिनेटेड फ्रॉम राउंड 2 having secured 17 votes, which is the minimum number. साउथ अफ्रीका राउंड 2 से बाहर हो जाता है. तो राउंड 2 से बाहर हो जाता है. जो साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव है, नाउ ही इज एलिजिबल टू वोट इन राउंड 3, राइट? सो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मस्ट बी 113 इन राउंड 3, बट वी आर हैविंग 108 ओनली. व्हाई सो? 5 मेंबर्स कम क्यों हो गए? दीज आर द 5 मेंबर्स जो अब किसी को वोट नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज these 5 members in first round voted for China. जब चाइना आउट हो गया तो दे सेलेक्टेड साउथ अफ्रीका. अब साउथ अफ्रीका को वोट करेंगे. अब साउथ अफ्रीका भी आउट हो गया है. नाउ इट मेक्स वन इंडिविजुअल कैन सिलेक्ट 2 कंट्रीज ओनली. इन 5 लोगों ने दोनों कंट्रीज सेलेक्ट कर ली है. नाउ दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट? सो दे आर आउट ऑफ द इलेक्शन पार्ट. तो यहाँ से 5 जो कम हुए हैं, हम इतना समझ चुके हैं कि यहाँ पे 113 होना चाहिए था, पर 108 है, तो दैट मींस 5 आर आउट ऑफ द इलेक्शन. ठीक है, तो बेसिकली ये जो 5 मेंबर्स थे, इन्होंने राउंड 1 में तो चाइना को वोट किया होगा और राउंड 2 में दे आर वोटिंग फॉर साउथ अफ्रीका. सो इसका मतलब जो चाइना के 14 आउट हुए हैं उसमें से 5 गए थे साउथ अफ्रीका के पास, राइट? और रिमेनिंग गए होंगे डेफिनेटली इंडिया के पास, बिकॉज दीज आर द ओनली ऑप्शंस दैट वी हैव. तो रिमेनिंग 9 गए होंगे इंडिया के पास. फाइन. नाउ सी, और क्या कंडीशन दे रखी है? 20% of those who voted for South Africa in round 1 voted for India in round 2. So let us assume कि there were X voters for South Africa in round 1. इसका 20% इंडिया को चले गए, तो रिमेनिंग इज 80% ऑफ X. ये अभी भी साउथ अफ्रीका के पास है, प्लस 5 क्यों? क्योंकि जो चाइना को जिन्होंने फर्स्ट राउंड में वोट किया था, नाउ दे आर वोटिंग फॉर साउथ अफ्रीका इन सेकंड राउंड, राइट? जो हमने अभी आज समझा था. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 17 देन, बिकॉज द वोट्स received by South Africa is 17 in round 2. तो यहां से if we solve this, so 4 by 5x will be equal to 12 and x from here comes out to be 15. So we can say that initially in first round South Africa received 15 votes. अब 15 में से 20% that is 3 votes इंडिया को ट्रांसफर हो गए हैं. इंडिया का कितना वोट्स आया टोटल इन राउंड 2? इट इज 40. एक बार ये फिल कर लेते हैं. एंड साउथ अफ्रीका इज 17 in round 3. Brazil is 43 and in round 4, and Russia is 23, and in round 4 none of the values is given to us, but we have Brazil in round 4. ये हमें पता है. ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर होगा. Now let us focus on the value of India and Russia in round 1. इनकी क्या वोट्स रहे होंगे? इंडिया का 40 हो गया राउंड 2 में. और ये 40 कैसे हो गया है? इन 40 में से 9, इनफैक्ट 10 वोट्स आपको चाइना वाले मिल गए हैं, और इस 15 का 20% जो साउथ अफ्रीका की वोटर्स थे उसका 20% राउंड 2 में इंडिया पे चल जाता है. तो 3 वोट्स यहां से आपको इंडिया को मिल गए होंगे. तो टोटल 13 वोट्स आपको एक्स्ट्रा मिले हैं इन राउंड 2. दैट मींस दैट इंडिया मस्ट हैव सिक्योर्ड 27 वोट्स इन राउंड 1. 27 रहा होगा. आप बोलेंगे 10 कैसे? तो गाइस इन टोटल
14 वोटर्स फ्री हो रहे हैं, +1 जो चाइना के कंटेंडर थे, जो चाइना को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब उनका भी वोट फ्री हो चुका है, अब वो भी वोट करेंगे सेकेंड राउंड में। And as per this condition, all the members who become eligible to vote, they got eliminated, voted for India only. तो जो चाइना के एलिमिनेट हुए हैं वो भी इंडिया के लिए वोट करेंगे, और जो 14 मेंबर्स जिन्होंने राउंड 1 में चाइना को वोट किया था वो भी किसी और कंट्री को वोट करेंगे। सो इन टोटल वी हैव 15 वोट्स अवेलेबल, राइट। उसमें से 5 साउथ अफ्रीका को गए हैं, तो रिमेनिंग 10 इंडिया को मिले होंगे। इससे हमें पता चल गया कि इंडिया का यहाँ 27 रहा होगा। एंड यदि हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल मस्ट बी इक्वल टू 111। So 34, 27, 15, 14 plus Russia. So this becomes how much? 54, 61 plus this is how much? 29. So this is basically 90. 90 votes अभी हो चुके हैं, टोटल वर 111। So यहाँ पे 21 वोट्स रशिया को मिले। ये पूरी कैलकुलेशन से हमने राउंड 1 के सारे वोट्स निकाल लिए हैं। राउंड 2 में चाइना इज आउट ऑफ द कंटेंशन। अब बाकी वैल्यूज कैसे चेक कर सकते हैं उस पर फोकस करते हैं। अच्छा, राउंड 3 में साउथ अफ्रीका भी बाहर हो जाने वाला है, ये भी हम 0-0 कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे रशिया, क्योंकि राउंड 3 में रशिया के मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स आए तो रशिया भी बाहर है, तो इसको भी हम 0 कर सकते हैं, ठीक है। और कैन वी से दैट ब्राजील के तो यहाँ भी 34 ही रहे होंगे, ब्राजील की वोट्स में कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, इट मस्ट बी 34 सेम फॉर ब्राजील। एंड यहाँ पे टोटल करके इट शुड बी 112. So can we find the votes for Russia? Let us try to find it out. So this becomes 34 and 40 is 74 plus 17 becomes 91. So 21 votes are remaining. हाँ, तो रशिया का भी सेम 21 ही रहा होगा. There is no change in votes for Russia as well. So we have find out the total number of votes of individual countries for round 1 and round 2 as well. Now let us move to round 3. Round 3 में क्या हुआ है उस पर फोकस करते हैं। Let me have some space, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सो राउंड 3 में जो राउंड 2 में एलिमिनेट हुए हैं उनके वोट्स एडिशनल आ गए होंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसको समझाता हूं आपको अच्छे से। ओके, सो राउंड 3 की बात करते हैं। राउंड 2 में कौन बाहर हुआ है? राउंड 2 में साउथ अफ्रीका है, जिनके 17 वोट्स फ्री हो गए, +1 जो साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहे थे अब वो भी वोट दे पाएंगे। सो इन टोटल वी हैव 18 वोट्स व्हिच आर राइट, 18 वोट्स है। अच्छा, इन 18 में से कैन वी से दैट, अच्छा, कैन वी फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स फॉर इंडिया ओवर हियर? नाउ वी हैव 43 फॉर ब्राजील, वी हैव 23 फॉर रशिया। तो क्या यहां से इंडिया के लिए वोट्स निकल सकते हैं? लेट अस कैलकुलेट दिस। सो दिस इज 66। सो कैन वी से दैट 108 में से यदि हम ये 66 हटा देते हैं तो 42 वोट्स इंडिया के रहे, ये भी हमें पता चल चुका है, राइट। तो आई होप ये भी हमारा पूरा हो चुका है। सो आई थिंक वी कैन नाउ मूव टू क्वेश्चंस पार्ट। So in final round the total number of votes was 107 and that will be distributed among Brazil and India only. ठीक है, एक बार क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो देखते हैं किस तरह से कैलकुलेट करना है। So how many voters did how many votes did South Africa get in round 1? So this we have calculated. In round 1 South Africa got 15 votes. How many members who voted for South Africa in round 2 voted for Brazil in round 3? Now this is some one of the question जिसके लिए हमको एक बार वापस सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसी पे फोकस करते हैं। साउथ अफ्रीका के ऐसे कितने मेंबर्स थे जिन्होंने राउंड 2 में साउथ अफ्रीका के लिए वोट किया बट दे वोटेड फॉर ब्राजील इन राउंड 3? ठीक है, देखते हैं। तो सेकेंड राउंड से वी हैव 18 वोट्स अवेलेबल, आउट ऑफ विच 5 हमको हटाना पड़ेगा बिकॉज दिस 5 आर द मेंबर जिन्होंने चाइना को फर्स्ट राउंड में वोट किया था और साउथ अफ्रीका को सेकेंड में किया था। So इनका जो 2 ऑप्शन था वो हो चुका है फुलफिल। नाउ दे कैन नॉट वोट फॉर एनीवन। सो वी हैव 13 मेंबर्स लेफ्ट। ये 13 वोट्स हैं जो फ्री हुए हैं, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इंडिया में, ब्राजील में। अच्छा, ठीक है। सो ब्राजील का देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ हाउ मेनी? 9 वोट्स। 9 का इंक्रीमेंट ब्राजील में रहा है, 2 का इंक्रीमेंट रशिया में रहा है, तो 2 का ही इंक्रीमेंट आपका इंडिया में रहा है। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया को इसमें से 2 का इंक्रीमेंट मिला है, रशिया को इसमें से 2 का इंक्रीमेंट मिला है, और बाकी जो इंक्रीमेंट मिला है 9 का वो ब्राजील को मिला है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स हु वोटेड फॉर साउथ अफ्रीका इन राउंड 2 वोटेड फॉर ब्राजील इन राउंड 3? आंसर इज 9। सिंपल। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ फेडरेशन?
तो ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, देयर आर 111 वोट्स इन फर्स्ट राउंड एंड 5 members are not eligible to vote because they are contesting, they are representing the 5 countries. So total 111 plus 5 is 116 total federation के member रहे होंगे. And last, okay, so moving to last question of the set. So at most how many members who voted for India in round 4 had voted for Russia in round 3? So now let us focus on round 3. So in round 3 Russia got eliminated, 23 votes are free now. But let us check, 23 फ्री हो गए हैं प्लस 1 जो रशिया के खुद के एक वोटर रहे होंगे जो राउंड 3 तक वोट नहीं कर पा रहे थे. सो वैसी इफ वी चेक इट, तो यहाँ पर द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो होने चाहिए थे दैट मस्ट बी 109. व्हाई 109? वी हैव 108 वोटर्स टिल राउंड 3. राउंड 3 तक 108 वोटर्स है. उसमें से राउंड 4 में एक रशिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब क्योंकि रशिया इज आउट ऑफ द कंटेंशन तो ही इज आल्सो एलिजिबल टू वोट, तो वो +1 हो जाना चाहिए था. एक वोटर जो रशिया वाले है वो और ऐड हो जाना चाहिए थे, वो 109 होने चाहिए. बट द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इज 107 ओनली. दैट मींस कि 2 वोटर्स आउट हो चुके हैं. क्यों आउट हो चुके हैं? सिंपल लॉजिक, क्योंकि इन्होंने 2 डिफरेंट कंट्रीज को वोट कर दिया होगा अब तक. सो नाउ दे आर नॉट एलिजिबल टू वोट फॉर थर्ड कंट्री ना, एज पर द रूल्स. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो टोटल एलिजिबल वोट्स जो वोट डिस्ट्रीब्यूशन में आए होंगे वो कितने आए होंगे? यहाँ पे 107 हुआ है तो 2 वोटर्स यहाँ से कम हो गए होंगे, तो 21 वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे. राइट नाउ जो 21 वोट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, एट मोस्ट हाउ मेनी मेंबर्स हु वोटेड फॉर इंडिया इन राउंड 4 had voted for Russia in round 3? उसमें से रशिया में जो वोटर्स थे उनमें से इंडिया को कितने गए होंगे और ब्राजील को? डेफिनेटली इंडिया और ब्राजील को ही गए होंगे. तो इंडिया को कितने गए और ब्राजील को कितने गए आपको वो बताना. Now see, there are total 107 votes, out of which Brazil has scored the highest vote. ये यहाँ पे दे रखा है इस टेबल में, if you can see that ना, कि Brazil is the one securing highest votes in round 4 as well. So that means Brazil is the winner. अब Brazil winner है और हमें इंडिया के वोट मैक्सिमाइज करने हैं and we need to distribute 107 votes. So let us do one thing. 54 votes हम ब्राजील को दे देते हैं और 53 which is the maximum number of votes that we can assign to India, that is 53 only. 53 वोट्स हम इंडिया को दे देते हैं. सो फॉर इंडिया जो इंक्रीमेंट रहा है वो 11 का रहा है, बट आउट ऑफ दीज 11 वोट्स एक वोटर तो वो है जिन्होंने रशिया को वोट किया था, जो रशिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अब राउंड 4 में एलिजिबल हो गए वोट करने के लिए. सो उस 1 को हटाएंगे तो 10 वोटर्स वो है जिन्होंने रशिया को वोट किया था एंड नाउ दे आर वोटिंग फॉर इंडिया. आई एम अगेन रिपीटिंग दिस. 11 क्यों नहीं लिया हमने आंसर? इनसे हमसे ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि जिन्होंने रशिया को वोट किया था उनमें से कितनों ने इंडिया को स्विच किया है. इंडिया का इंक्रीमेंट इज ऑफ 11 वोट्स, बट आउट ऑफ दीज 11 वोट्स एक कंटेंडर तो वो है जिन्होंने किसी को वोट नहीं किया था. ही वाज रिप्रेजेंटिंग रशिया. अब बिकॉज रशिया इज आउट ऑफ कंटेंशन तो वो एक वोट एलिजिबल हो गया है जो इंडिया को ही मिलेगा. सो आउट ऑफ द 11 वोट्स रिसीव्ड बाय इंडिया, वन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया. उसको हटाना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने राउंड 3 में किसी को वोट नहीं किया. तो अब यदि हम उनको हटा देते हैं तो ये जो 10 वोटर्स आ रहे हैं, दीज आर द वोटर्स जो राउंड 3 में रशिया को वोट किए होंगे एंड नाउ दे आर वोटिंग फॉर इंडिया. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 10. सो ओवरऑल दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. आई होप आपको क्लियर होगा अच्छे से. थैंक यू.